Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are good. I'm your course instructor of the physiology. My name is Dr. Quyatullah Nazar, and today we are going to start our new chapter which is about blood and the body fluid. I hope you all watch my recorded video. So here in this video, in this lecture, we are going to discuss some important points and the basic introduction of the blood and the body fluid. So in this chapter, we are going to cover the introduction of the blood and the body fluid, and then we will study about the significance, compartments, composition, measurements, concentrations, and then we will study the maintenance of water balance in the body fluid, and then we will cover the applied physiology. So let us understand that what is the blood and the body fluid and what is the importance of this body fluid in the body. If we talk normally about the body fluid, then we will say that it is composed of two substances. The one is the solid portion and the other one is the fluid portion. It means that our body contains two types of substances, and they are in the form of the solid part and also in the fluid part. So if we talk about fluid part, then as I discussed earlier that fluid part is basically the 2/3 of the whole body. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड पार्ट 2/3 है तो इसमें फिर 1/3 आपकी बॉडी में सॉलिड पार्ट आ जाएगा. और सॉलिड में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी की जितनी भी टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, बोन मैरो है, कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, इट ऑल मेक द सॉलिड पोर्शन ऑफ द बॉडी. अगर हम फ्लूइड की बात करें तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो ब्लड, प्लाज्मा, इसके बाद वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि इस ब्लड के अंदर है, देन द वाटर कंसंट्रेशन, दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड कॉम्पोजिशन. अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर हमारी बॉडी का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पोर्शन है और वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में in sense in the transportation of different materials. As we all know कि water is basically act as a transportation of different materials from one side to another. अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो वाटर ही आपके पास एक ऐसा मीडियम है जो कि हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के न्यूट्रिएंट्स और आयंस की कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंट्रा सेलुलर की तरफ जाए. If there is any lack of water in the level of the cell or outside the level of the cell, that the body faces lots of problems which are in the form of the dehydration. So water is a very, very important component which we need to discuss in the body fluid. बॉडी में वाटर की बात करें तो हमारे पास सॉलिड पोर्शन भी आता है और ये सॉलिड पोर्शन राउंड अबाउट आपकी बॉडी में 35 to 40% है. इट मीन्स कि अगर हम टोटल बॉडी की बात करें तो हमारी टोटल बॉडी में वाटर की जो परसेंटेज है इट इज़ अबाउट 60 to 65%. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सॉलिड पोर्शन देन इट इज़ अबाउट 35 to 40%. सो if we talk in a normal young adult, then the ratio varies. Female और males में कुछ ratio vary करती है because of the composition of the body. Sometimes males need more amount of water to accomplish their normal physiological processes, and females need less amount of water. But ये ज़रूरी नहीं है कि female always need less amount of water. In case of pregnancy, the physiological adaptations of the pregnant female actually demands more amount of water to accomplish the different physiological processes. तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड रूल ही हो गया है कि फीमेल्स में जो वाटर की अमाउंट है वो 50 to 55% है और सॉलिड की जो अमाउंट है वो 45 to 50% है. अब ये कम है बिकॉज क्यों? क्योंकि फीमेल्स में एडिपोज टिश्यूज हैं, जबकि मेल स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो मेल स्ट्रक्चर में एडिपोज टिश्यूज की अमाउंट कम होती है. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I would like one of you to please tell me that what I explained Rida Babar. I've seen a name Rida Babar. Rida Babar, are you the regular student of this class? Rida Babar, are you from semester 1, section C? Anyone know Rida Babar? GR? Have you know her? Ma'am, Rida Babar here, only her name is Rida. Okay, but here the Rida Babar is mentioned, but she's not responding. Rida Babar, if you hear us, then kindly respond us. Okay, let's move towards the another student, Iman Mehtab. Iman Mehtab, are you there, beta? यस मैम। मैम आपने कहा है कि जो बॉडी Beta, होती है वो please clear up your voice. मैम आपने ये बताया है कि जो बॉडी है वो सॉलिड से और फ्लूइड से मिलकर बनी हुई होती है, और अगर हम लोग एक बॉडी के 3 पार्ट्स करें तो उनमें से मोर देन 2 पार्ट जो है वो बॉडी का फ्लूइड के ऊपर कंसिस्ट होता है, मतलब कि जो बॉडी का Okay. जो मोस्टली वेट होता है वो फ्लूइड से मिलकर बनता है। और जो फ्लूइड की क्वांटिटी होती है वो 45% टू 75% तक होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और जो वाटर की क्वांटिटी है वो फीमेल्स के अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स के अंदर, क्योंकि मेल्स के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ नहीं होते जबकि फीमेल्स के अंदर वो टिश्यूज़ होती हैं। No, we cannot say that males don't have adipose tissues. उनके अंदर If होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में होते हैं। yes, the amount of the adipose tissues in males are less as compared to the females. Females have more adipose tissues. That is the reasons that females get obesity, chances of obesity faster than the males. If we say that there is no adipose tissues in the body, then it actually covers in terms of the disease. एडिपोज टिश्यू का ना होना बॉडी के लिए एक पैथोलॉजी है, एक डिजीज है. So this is very important component for the body to have an adipose tissue for the survival of the systems in harsh environments. So let's start with the another नहीं होगा तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस
हेलो। यस मैम। ओके, आई थिंक मैं साइन आउट हो गई थी एंड थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। विल यू प्लीज टेल मी कि कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई हूँ? क्या इस मैम हम सिग्निफिकेंस इन होमियोस्टेसिस पे थे जब आपकी आवाज नहीं थी आई, वहां से हमने स्टार्ट करना है। हेलो? यस मैम। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैंने इस स्लाइड को कवर किया था या फिर मैं स्लाइड के स्टार्टिंग से ही डिस्कनेक्ट हो गई थी? मैम स्टार्टिंग से ही हो गई थी। ओके, मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने सिग्निफिकेंस देखने हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही? ओके, मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। Now please see, is it visible to all of you? यस मैम। यस Okay, and my voice too? यस यस मैम। यस अगर मैं साइन आउट हो गई तो काइंडली मुझे उसी तरह इन्फॉर्म कर दीजिएगा जैसे आपने पहले मुझे अभी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म किया है। अच्छा, so next thing is we have to study the significance of body fluid in these systems, which is the homeostasis, transport mechanism, metabolic reaction, textures of tissues, and so on. हम देखेंगे कि इन बॉडी फ्लूइड्स का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी के सिस्टम्स पे। अगर सबसे पहले सिस्टम की बात करें तो हमारे पास आता है होम्योस्टेसिस का। As we all know that homeostasis is basically called the internal environment of the body. अगर इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा मेंटेन नहीं होगा, वहाँ पे एक बैलेंस नहीं मेंटेन होगा, तो बॉडी सेल्स ही सर्वाइव नहीं करेंगे। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। दीज आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन्स, आयंस, ऑक्सीजन, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस आते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कि बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं किसको? हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को। अब अगर इसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आ जाती है ड्यू टू द एनी डिस्टर्बेंस इन द फ्लूइड ऑफ द बॉडी, अगर फ्लूइड मीडियम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इवन अगर वाटर की कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस एक्चुअली मेंटेन्स द कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसी तरह अब हम ये भी कहेंगे कि जो हमारी बॉडी का बॉडी फ्लूइड है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं होम्योस्टेसिस को डेवलप करवाने के लिए। So these both things are interdependent with each other. Homeostasis and body fluid, इन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। If we move towards the next significance, then it is the transport mechanism. देखो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बॉडी फ्लूइड नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर बॉडी में कोई फ्लूइड की लॉस हो गया है या फिर ब्लड का लॉस हो गया है, तो क्या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो सकता है? सिंपल, अगर आप ऑक्सीजन की एक एग्जांपल लो, तो अगर हमारी बॉडी से आप ब्लड ही निकाल दो, जो कि फ्लूइड मीडियम है ना ब्लड का, अगर ब्लड ही निकाल दो, तो क्या बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है? और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली नेक्रोसिस डेवलप होगी। नेक्रोसिस से क्या है कि सेल बॉडी डेथ होने लग जाएगी, और अल्टीमेटली सब की सब बॉडी क्या होगी? ऑटोफैगी की तरफ चली जाएगी, और अल्टीमेटली द पर्सन विल बिकम डाई। द नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन। यस, बॉडी फ्लूइड्स का मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें वाटर जो है वो एक मीडियम है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। वाटर ने डिसाइड करना होता है कि कौन से सब्सटेंसेस हार्मफुल है जिसको बॉडी से बाहर जाना है, कौन से सब्सटेंसेस बॉडी ने यूटिलाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम,
ये सब के सब क्लोराइड, ये सब के सब आइंस ऐसे हैं जो कि वाटर बॉडी में रिटेन करवा देता है और बाकी जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर की तरफ निकाल देता है। अगर टेक्सचर ऑफ टिश्यू की बात करें तो वाटर टिश्यू का टेक्सचर बनाता है। एज वी हैव स्टडीड प्रीवियसली, अगर वाटर की कंसंट्रेशन खराब हो जाती है तो क्या होगा? सेल आइसोटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा एंड सो ऑन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। अगर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो वाटर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। वाटर अगर कम होने लग जाएगा तो टेम्परेचर रेज होने लग जाएगा। इसी तरह अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होने लग जाएगी तो टेम्परेचर की अमाउंट क्या है कि कम होने लग जाएगी। तो these are the significance of the body fluid in maintaining the homeostasis, then transport mechanisms। ये सब के सब वो systems हैं जिसमें body fluid का बहुत important role है। अगर हम बात करें compartments of body fluid की, distribution of body fluids की, तो ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस देखी हो तो इसमें मैंने बड़ा डिटेल में समझाया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो ये क्या है कि हमारी बॉडी में टोटल जो लिक्विड पोर्शन है वो कितना है? 40 लीटर। अब ये 40 लीटर फर्दर डिवाइड है 22 लीटर और 18 लीटर में। 22 लीटर किस में जाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट में, और 18 लीटर किस में जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट में। फर्दर क्या है कि यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट डिवाइड हो जाता है 5 सब यूनिट्स में। इसका मतलब यह है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट जो 18 लीटर था वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में गया, जिसमें एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, आपकी बॉडी का प्लाज्मा है, फ्लूइड इन बोन्स है, फ्लूइड इन ब्लड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि कार्टिलेज, देन द ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अब ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी फर्दर डिवाइडेड है किसमें? cerebrospinal fluid में। cerebrospinal fluid basically the fluid which is present in the brain and the spinal cord. फिर intraocular fluid, the fluid of the eye, then digestive juices, then the serous fluid and the synovial joints. Now I will like Bakhtawer to please summarize it. अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. How are you? अच्छा मैम, टोटल वाटर इन द बॉडी इज अबाउट 40 लीटर। हमारी बॉडी में टोटल जो वाटर है वो 40 लीटर है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2 मेजर कंपार्टमेंट्स में, विच आर इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है 18 लीटर वाटर और वो बनाता है हमारा टोटल 45% ऑफ द बॉडी वाटर। Intracellular fluid there is 22 liter and it forms the 55% of the total body। आगे ECF है वो फर्दर डिवाइड हुआ है 5 सब यूनिट्स में, जिसमें हमारे पास आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ, प्लाज्मा, fluid in bones, fluid in dense connective tissues like cartilages। interstitial fluid और lymph है 20%, प्लाज्मा हमारे पास आ जाता है 7.5% और बोन्स में भी हमारे पास फ्लूइड आता है 7.5% और आगे भी 7.5%। आगे आता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड विच इज 2.5%। दैट इंक्लूड्स वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो आगे इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूसेस, सेरस फ्लूइड और आगे साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स। ठीक हो गया मैम। So Bakhtawer covers the distribution of this intracellular and extracellular fluid. So I will move towards the next slide. Am I visible to all of you? लाइट यहाँ पे चली गई है, इसलिए आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। Okay, now let us discuss the composition of body fluid. अब जिस तरह हमने इस चीज़ पे डिवाइड किया है कि हमारी बॉडी का जो कंपार्टमेंट फ्लूइड है वो डिवाइड हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फॉर्म में। इसी तरह हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन है उसमें है क्या क्या, कि हमने बात कर ली कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट में इतने % ऑफ फ्लूइड है और कहाँ पे ये फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
अब अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन की, तो हमारी बॉडी फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन है वो 2 सब्सटेंसेस में, एक आपके पास आ जाती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरा आपके पास आ जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. Here you can see the substances which are located in the extracellular and intracellular. अब इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं. ठीक है. अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में आपके पास वो सब्सटेंसेस है जो कि यहाँ पे मेंशन है, जिस तरह सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है. अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. इसमें डिफरेंट फार्मूलाज थे जो कि मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो में शो करवाए कि ये फार्मूलाज हैं कि किस किस तरीके से आप बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं. अब मेजरमेंट्स क्या करनी होती है इन फ्लूइड्स को? यहाँ पे आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड है जो कि 22 लीटर है. यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर विच इज अबाउट 18. फर्दर ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है और बख्तावर ने एक्सप्लेन किया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड राउंड अबाउट 12 है, इंटरस्टिशियल में ये है, अदर फ्लूइड में आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन आती है और प्लाज्मा इज राउंड अबाउट 2.75 लीटर. अब बात ये है कि हमने इन फ्लूइड्स की मेजरमेंट करनी है कि हम देखना चाहते हैं कि अब लेट सपोज ये 12 लीटर तो स्टैंडर्ड लिख दिए, okay, one of the student messaged me, I'm again invisible. I'm sorry, this is now I'm audible to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm sorry. This is because of the poor connection today. And I try to connect my mobile phone with this device. Let me connect it and see. Now it will work properly. अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि now I'm audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को हमने मेजर करना है. उसको मेजर करने के लिए आपके पास एक इनडायरेक्ट मेथड होता है जिसको आप कहते हैं इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड. इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड में क्या किया जाता है कि डिफरेंट डाइज यूज किए जाते हैं. प्लाज्मा के लेवल पे अपना डाई है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लेवल पे अपना डाई है और इसी तरह सो ऑन डिफरेंट लेवल्स पे अपने अलग अलग डाई हैं. अब इन सब डाई को यूज करना होता है स्पेसिफिकली डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में. वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर. और वहां से क्या है कि उस डाई के थ्रू क्या है कि आप डाइल्यूशन मेथड करवाते हो और मेजरमेंट कर देते हो बॉडी फ्लूइड की. अब इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है ना इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड का, वो ये दिया गया है V इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई C. V इसमें क्या है? V is basically the volume of fluid in the compartment. M is the mass or total quantity of marker substances. मार्कर सब्सटेंसेस मतलब जो मैस, जो मार्कर सब्सटेंस, जो डाई आपने इंजेक्ट किया है उस कंपार्टमेंट में. इसके बाद C क्या है? C आपके पास कंसंट्रेशन है मार्कर सब्सटेंस की इन दी सैंपल फ्लूइड. मतलब इस मार्कर सब्सटेंस की भी एक कंसंट्रेशन है जिसको आपने डिवाइड कर देना है इसके साथ. तो V इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द कंपार्टमेंट जिसका फ्लूइड आपने फाइंड करना है. ठीक है. और M एंड C के साथ क्या है कि आप निकालोगे इसका फॉर्मूला. अब फर्दर M करेक्शन फैक्टर, ये दूसरा आपके पास फॉर्मूला है जिसमें आप सिंपल क्या करते हो करेक्शन फैक्टर के तौर पे
कि आप इसी मार्कर सब्सटेंस को माइनस कर देते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड के साथ और डिवाइड कर देते हो इसको किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर है? अब यूजेस ऑफ इंडिकेटर डाइल्यूशन मेथड क्या, इसके क्या यूजेस हैं? देखो इसके सिंपल यूजेस है कि हमें पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट में कितनी मेजरमेंट है फ्लूइड वॉल्यूम की। इसी तरह हम इससे ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट में कितनी मेजरमेंट है। अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि आप मार्कर सब्सटेंसेस आप डाई यूज कर रहे हो तो उसका बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा। बाजुकात अब जिस तरह फॉर एग्जांपल सिटी स्कैन के लिए जब जाते हैं तो सिटी स्कैन से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है पेशेंट को। सॉरी जी मैम, ये मार्कर सब्सटेंसेस का एक दफा फिर से बता दें। मार्कर सब्सटेंसेस। ओके, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो मार्कर सब्सटेंसेस बेसिकली एक डाई है, ठीक है, जो कि इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, जिसका फ्लूइड वॉल्यूम आपने फाइंड करना है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपने बॉडी में प्लाज्मा का फ्लूइड वॉल्यूम निकालना है कि आपकी बॉडी में टोटल प्लाज्मा का फ्लूइड वॉल्यूम कितना बनता है। तो अब प्लाज्मा का स्पेसिफिक मार्कर सब्सटेंस है जिसको कहते हैं डाई। अब ये जो डाई या मार्कर सब्सटेंस ये एक ही बात है। मैं मार्कर सब्सटेंस की बात करूं, डाई की बात करूं, दीज बोथ आर द वन थिंग। अब इसमें क्या होता है कि आपने इसको इंजेक्ट करना होता है कि बॉडी कंपार्टमेंट में। एक दफा आपने बॉडी कंपार्टमेंट में इसको इंजेक्ट कर दिया तो इसके बाद क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ आप क्या निकाल लेते हो, उसी फ्लूइड का वॉल्यूम। जिस तरह मैंने कहा कि हम प्लाज्मा का फाइंड कर रहे हैं ना, तो आप प्लाज्मा की फ्लूइड का वॉल्यूम निकाल लेते हो। अब ये जो मार्कर सब्सटेंसेस है ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐसा मार्कर सब्सटेंस यूज कर लो जो कि बॉडी में टॉक्सिक हो और वो बंदा ही मार दे। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहती हूँ कि देखो कुछ मार्कर सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि फॉर द टाइम बिंग पेशेंट के लिए इरिटेटिंग होते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद कह देते हैं, अटेंडेंट्स कहते हैं या डॉक्टर समझा देता है कि आपने 24 आवर्स तक प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है, जितना ज्यादा आपको यूरिन आएगा तो आपका क्या है कि स्टमक ठीक हो जाएगा। अक्सर बूढ़े लोगों का सिटी स्कैन होता है, ठीक है, हो सकता है आपके घरों में किसी का हुआ हो। अब क्या होता है कि सिटी स्कैन से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है। होता ये है कि बाज़ औक़ात सम टाइम इट क्रिएट डिसऑर्डर स्टमक। ठीक है, बूढ़े लोगों को डायरिया हो जाता है उसकी वजह से। वो आते हैं, वो कहते हैं हमारा पेट अपसेट हो गया। डायरिया नहीं होती तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब सिंपल उसमें 24 आवर्स तक वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सबको हो, तो किसी को नहीं भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि दीज मार्कर सब्सटेंसेस हैव सम इफेक्ट ऑन द बॉडी, लेकिन ये इफेक्ट्स नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। ये इफेक्ट टॉक्सिक नहीं होने चाहिए कि ये ऐसा ना हो कि ये किसी आपके सिस्टम को फेल कर दे, हार्ट अटैक करवा दे। तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं मार्कर सब्सटेंसेस की, जिसमें ये चीज़ें मेंशन्ड है कि ये नॉर्मली फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाए। अब सिटी स्कैन के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो आधा घंटा पहले लगाया जाता है, इसके बाद फिल्म ली जाती है। ठीक है, अब इसी तरह ये कह रहे हैं कि जब आपने इसको इंजेक्ट करना है बॉडी में तो ये इजीली रीजनेबल टाइम में मिक्स हो। फिर ये है कि ये एक्सक्रीटेड रैपिडली, विल नॉट बी एक्सक्रीटेड रैपिड। ऐसा ना हो कि ये फौरन से ही निकल जाए बॉडी से या कंपार्टमेंट से बाहर, वरना जाहिर सी बात है वो फिर अगर फौरन से निकलेगा तो ये करेक्शन फैक्टर आ जाएगा, उसका दोबारा सही तरह वॉल्यूम नहीं चेक हो पाएगा। देन वही बात है कि इसमें क्या है कि बॉडी फ्लूइड का कलर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, और ना तो वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। अब ये कुछ मार्कर सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज होते हैं डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। अगर टोटल बॉडी वाटर का वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है तो उसमें आप ये मार्कर सब्सटेंसेस यूज करोगे विच आर डाइट्रियम, ट्राइट्रियम ऑक्साइड्स एंड एंटीपायरिन। इसी तरह अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो आप रेडियो एक्टिव सोडियम एंड नॉन मेटाबोलाइजेबल सैकराइड्स लाइक इनोलिन एंड मैनिटोल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को आप यूज करोगे। And same if you want to find out the
fluid volume in plasma, then you will use radioactive iodine and Evans blue. And keep this thing in your mind that these all marker substances are non-toxic. They do not create any harmful effect in the body. Clear? So this is the detail of these marker substances where it is clearly written that what deuterium oxide and tritium oxide can do. So let's move towards the another topic, which is the measurement of extracellular fluid volume. Here you can see the example of the measurement of extracellular fluid environment, where we will take the sucrose space fluid environment. अब यहाँ पे क्या था कि m mass amount lost in urine, ठीक है. अब इसमें 150 to 10 मिलीग्राम ऑफ अमाउंट जो कि थी यूरिन की वो लॉस हुई, ठीक है. इसको नोट कर लिया और इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन प्लाज्मा, वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी, आपने इसको मेंशन कर लेना और इसके बाद क्या है कि आपको टोटल सुक्रोज का वॉल्यूम मिल जाएगा. तो दिस इज हाउ वी विल मेजर द सम फ्लूइड थ्रू दिस इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड. Again, this is the repetition and the measurement of interstitial fluid environment. This is another formula. Interstitial fluid environment जो मैंने आपको पहले दिखाया था पहली डायग्राम में, which is about 22 लीटर. इसको फॉर्मूला क्या है, इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एनवायरनमेंट को माइनस कर देते हो प्लाज्मा वॉल्यूम से, तो आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम आ जाता. ठीक है. इसी तरह अगर आपने इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को करना हो तो आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल फ्लूइड वॉल्यूम माइनस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम. कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड. अब कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है ना, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है. एक आपके पास ऑस्मोलैलिटी है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस when we are studying the transport systems through cell membrane. Osmolality क्या थी कि कितने substances actively क्या है कि solution में dissolve हो जाते हैं, ठीक है. अब वो कितनी speed से dissolve होते हैं, इसको हम कहते हैं osmolarity. जिसमें osmolality तो ये थी ना कि किस तरह से वो actively substance concentration develop बनाते हैं और एक solution में क्या है कि spread हो जाते हैं. जबकि ऑस्मोलैरिटी क्या है, ऑस्मोलैरिटी ये है कि कितने टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हैं वो इस सोल्यूशन में चले गए. एंड देन टोनिसिटी. टोनिसिटी क्या थी, टोनिसिटी बेसिकली मेजर्स द इफेक्टिव ऑस्मोलैरिटी. इसका मतलब ये कि टोनिसिटी हमें ये बताती है कि कौन से सब्सटेंस इस सॉल्वेंट में प्रॉपर्ली डिसॉल्व हुए और कौन से सब्सटेंस इफेक्टिवली डिसॉल्व नहीं हुए. Because we have already discussed this thing कि osmolality is the diffusion or the concentration of substances with the substrate. तो इसमें टोनिसिटी में आप ये बताते हो कि कौन सा सब्सटेंस कितना इफेक्टिवली क्या है कि एक सब्सटेंस के अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हुआ. और टोनिसिटी को फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में, विच इज द आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. दिस इज अगेन द रेपिटेशन ऑफ योर सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने बताया था कि आइसोटोनिक फ्लूइड एनवायरनमेंट जो होता है वो एक आपके पास आइडियल एनवायरनमेंट होता है. जबकि हाइपरटोनिक क्या होता है, उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जबकि हाइपोटोनिक में वाटर की अमाउंट कम हो जाती है. मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस में हमने क्या चीजें देखी थी कि किस तरह से वाटर बैलेंस आपकी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है. एंड नाउ दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड किडनी, which means both hypothalamus and kidney controls the maintenance of water balance. What happen अगर इस water balance में कोई problem हो जाए, तो water balance में अगर कोई problem हो जाए तो उसकी वजह से क्या है कि dehydration हो जाती है. Can anyone please tell me the definition of dehydration? Mohsin, are you present today? Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Mohsin, please tell me what is dehydration? Ma'am, lack of water or shortage of water is dehydration. Good. Kinza, will you please elaborate it? Kinza Sahir.
Aliza baby? Yes, ma'am. Yes, please. Will you please elaborate it? At Mohsen said that this is the loss of water. So what you wanted to add in dehydration? Dehydration तो देखो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. Anything which you know more about dehydration? मैम साल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और वाटर की कम हो जाती है. दोनों मैम अटक गई है. सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, बाज़-औक़ात कम भी हो जाती है. इनकी अमाउंट भी कम हो रही है. बिल्कुल. लाइबा रियाज? Yes, ma'am. Ma'am, Will you please dehydration. add some points? Yes, ma'am. Dehydration is that Yes. like loss of water. Like जितना आप पी रहे हैं उससे ज्यादा वाटर का लॉस हो जाना है डिहाइड्रेशन. Okay. Good. Ma'am, may I? Yes, please, Kenza Ramzan. Ma'am, dehydration is that shortage of water and loss of interstitial fluids. Fluids जो और भी fluids होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ water ही, हमारी body में और भी fluids हैं, अगर उनकी भी हम shortage हो रही है तो it's also called dehydration. Okay, good. Osama? Yes, ma'am. Beta, Ma'am, will you dehydration mean shortage of water. Hydration mean water. Dehydration shortage. Okay, good. So here is the classification of the dehydration. Is the slide is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, here you can see the classification of dehydration, and these are classified into 3 types. One is the isotonic, then hypertonic, and hypotonic. What happens in the isotonic dehydration? Any one of you? आप में से कोई मुझे बताना चाहे? What happened in isotonic? I thought means same ना, तो it means कि जितना हम water को पी रहे हैं उतना ही वो फिर डिहाइड्रेट हो रहा है. इतनी समझ आ रही है इससे. Anyone else? Ma'am, balanced loss of water and sodium, like balanced Very good. loss of water and sodium. Yes. Like in Please case tell me of your diarrhea. name. Ma'am, Bakhtawer. Okay. मैम हम ये भी Good. कह सकते Bakhtawer. Bakhtawer told us that isotonic is basically the balanced loss. Yes. Okay. So अगर मैं इसको सिंपली क्लासिफाई करूं तो मैं इसमें ये कहूंगी आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन वो है जिसमें जितना पानी का ज़या हुआ उतना ही सोडियम भी गया, मतलब वाटर और सॉल्ट इक्वली लॉस हुआ. ठीक है. अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करती हूँ तो हाइपरटोनिक हाइपर ज्यादा पानी, हाइपोटोनिक का मतलब ये कि पानी ज्यादा कम हुआ, ठीक है, उसका लॉस ज्यादा गया, जबकि सॉल्ट का इतना नहीं हुआ. अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करती हूँ तो हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि वाटर की अमाउंट कम निकली, ठीक है, उसका ज़या कम हुआ, जबकि जो सॉल्ट था उसका लॉस ज्यादा हुआ. ठीक है. तो ये मेन डिफरेंस है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में. समरा, विल यू प्लीज डिफाइन मी, इसको जल्दी से आप इसको डिफाइन कर दो अपने वर्ड्स में कि आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या क्या डिफरेंस हुआ. जी जी जरूर मैम. आइसोटोनिक में सेम है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो भी सेम है और इसमें सॉल्ट्स जो हैं वो भी सेम है. हाइपरटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन जो है ना, जो वाटर लॉस होना है वो ज्यादा होगा और जो है सॉल्ट जो है वो कम लॉस होंगे. जी गुड. यूज द स्पेसिफिक वर्ड्स. इन आइसोटोनिक इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, इसमें आप लॉस की बात करो. ठीक है. गुड. जी बताएं आगे. आगे मैम. हाइपो में जो था उसमें वाटर लॉस जो था वो कम हो रहा था, लेकिन जो सॉल्ट्स थे वो ज्यादा लॉस हो रहे थे. बस. वेरी गुड.
ठीक है। थैंक यू मैम। अगर कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है। डिहाइड्रेशन किस किस वजह से हो जाती है? अगर डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया या उल्टियां लगने लग गई, या फिर यूरिनरी आउटपुट बहुत ज्यादा हो गया, या फिर पानी बहुत ज्यादा निकल गया, ठीक है, थ्रू ड्यू टू एनी इशू। अगर कोई शुगर का पेशेंट था, ठीक है, या फिर किडनी का प्रॉब्लम था किसी पेशेंट को, तो उसमें भी क्या होता है कि वाटर का लॉस हो जाता है, तो ये भी डिहाइड्रेशन है। इसी तरह अगर किसी ने पानी ही कम पिया तो डेफिनेटली जिसने पानी कम किया उसको तो डिहाइड्रेशन होनी ही होनी है। फिर अगर किसी ने प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी की, जैसे कि कोई एथलीट जो बहुत ज्यादा देर भागता रहा, तो ऑब्वियसली उसका वाटर कंज्यूम हो गया टेम्परेचर रेगुलेशन में, उसको भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। या फिर किसी की बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, गर्मी थी, स्वेटिंग ज्यादा हो गई, उसने पानी की अमाउंट जो थी नहीं प्रॉपर इनटेक की, उसने पानी नहीं सही तरह पिया, तो क्या होगा कि पानी पसीने से निकल गया, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन है। इसी तरह ऐसा जिसने लैक्सेटिव्स बहुत यूज कर लिए, डाययूरेटिक्स बहुत यूज कर लिए, तो लैक्सेटिव्स और डाययूरेटिक्स क्या करते हैं? वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लैक्सेटिव आपके पास एक कॉमन लैक्सेटिव है जिसको आप इस्पोगोल कहते हो। उसमें क्या होता है, इस्पोगोल के ले लेने से अगर आप रेगुलर इस्पोगोल लेते हो तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर क्या होता है, इस्पोगोल नॉर्मली क्या कर रहा होता है कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। क्लियर हो गया? अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, इट इज द साइन एंड Excuse me, मैम। सिम्टम। जी प्लीज। मैम, ये लेक्सेटिव और ड्यूरेटिक्स का पर्पस क्या होता है? लेक्सेटिव्स एंड ड्यूरेटिव्स तब यूज किए जाते हैं जब आपकी बॉडी में डायरिया की कंडीशन हो जाए। ठीक है, डायरिया में क्या करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल देखो, जब इसमें आप पैथो में भी पढ़ोगे, जब लूज मोशन स्टार्ट हो जाए, जब बहुत तेजी से आपकी बॉडी से वाटर जो है वो खत्म होने लग जाए, तो उसमें फिर क्या है कि लैक्सेटिव्स को यूज किया जाता है। लैक्सेटिव्स क्या कहते हैं कि वाटर को रिटेन कर लेते हैं आपकी बॉडी को, और इससे क्या है कि डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है ना, उससे आप बच सकते हो। लेकिन अगर इसको अब्यूज किया जाए, ठीक है, देखो एक नॉर्मल अगर बॉडी में डायरिया हो गया फिर लैक्सेटिव्स यूज किए फिर तो इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं था और आप इसको नॉर्मली यूज करते रहे और आपने वाटर की अमाउंट भी सही नहीं रखी, कि आप रोजाना का 1 गिलास पानी पी रहे हो लेकिन आप इसको गोल भी खा रहे हो, लैक्सेटिव है ना, आपको सिंपल एग्जांपल मैंने दी है। इसी तरह अक्सर लोग लैक्सेटिव्स में और भी बहुत सी चीजें ले लेते हैं, मेडिकेशंस हैं जो कि मैं अभी नाम नहीं लूंगी, वो आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में। अब अगर आपने वाटर की अमाउंट कम रखी थी, आप उसका इंटेक कम कर रहे थे, तो लैक्सेटिव्स क्या कर रहे थे? वाटर को रिटेन कर रहे थे अपने अंदर ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। अब जब यही आप पानी ही कम पियोगे और वाटर जो आपकी बॉडी में पहले से पड़ा हुआ था वो लैक्सेटिव्स ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो बॉडी में तो पानी की कमी हो गई। तो दिस इज द रीजन कि लैक्सेटिव्स भी बाजुकात क्या है कि डिहाइड्रेशन करवा जाते हैं। अब आ जाओ तो साइन एंड मैम, सिम्टम्स। हम ये कह सकते हैं कि हमें जो लेक्सेटिव्स हैं, दे बेसिकली लाइक आप उसको फॉर लूजन अप स्टूल आप उसको यूज करते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वी नीड टू यूज लैक्सेटिव्स ऑलवेज ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ओके। जब तक हमें इसकी जरूरत नहीं है इसको ना यूज करें, बिकॉज ये अब्यूज है। ठीक है, किसी भी चीज का जी आप मैम। एक्सेप्ट करें तो इट इज द अब्यूजिंग। नाउ कम्स टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल माइल्ड से हैं, कुछ स्वेयर हैं और कुछ बहुत ज्यादा स्वेयर है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि डेथ भी हो जाती है। अगर माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करें तो मुंह खुश्क होने लग जाता है, ठीक है, प्यास भरने लग जाती है, पसीना आना कम होने लग जाता है, ठीक है, यूरिन नहीं आता, ठीक है, इसके बाद सर दर्द होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं और लेग्स और आर्म्स में क्रैम्प होते हैं। ये माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि बॉडी में डिहाइड्रेशन है और बॉडी को कवर करना है। स्वेयर में क्या हो जाता है कि वॉल्यूम फ्लूइड डिक्रीज होने लग जाता है, मतलब लूज स्टूल्स आने लग जाते हैं। फिर कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर भी लो होने लग जाता है, हाइपोवोलेमिक कार्डियक शॉक। अगर ये मसला नहीं रिजॉल्व हो रहा तो कभी कभी क्या है कि कार्डियक शॉक भी हो जाता है और देन पेशेंट फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। स्वेयर डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि बाज औकात ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लिवर, किडनीज ये भी डैमेज हो जाते हैं।
मेंटल डिप्रेशन आने लग जाती है, रीनल फेलियर, कन्वर्जन्स और कोमा तक आ जाता है। ठीक है, so see these are the sign and symptoms of dehydration. Now I will like to announce Shafaq. Shafaq, are you there? Shafaq is present. कुछ बच्चे तो यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिर्फ साइन इन कर देते हैं, बट शायद वो नहीं पसंद करते कि प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। जी Any मैम। one of you volunteer? Yes. So बेटा, why are you late? मैम एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं इसलिए सुन रही थी, बस चुप अब कर क्या थी। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? साइन एंड सिम्टम्स, माइल्ड एंड मॉडरेट डिसफंक्शंस। मैम आपने बताया कि माइल्ड जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको चक्कर आने लग जाते हैं, उसके अलावा आपको चक्कर आने लग जाते हैं आपको और जो चक्कर सीवियर खुश्क हो जाता है, प्यास लगने लग जाती जी, है। और जो ठीक है, सीवियर होते हैं उसमें आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और उसमें आपके स्टूल लूज आना शुरू हो जाते हैं। मनाहिल इकबाल, और मनाहिल इकबाल इज देयर? आपकी क्लास में 2 ही बॉयज हैं, मोहसिन और उसामा। मोहसिन और उसामा के अलावा कोई और बॉय है आपकी क्लास में? नो मैम। ओके, मनाहिल, आर यू देयर? Yes, ma'am. बेटा, प्लीज टेल मी द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ severe dehydration. मैम ब्रेन, लिवर और किडनीज डैमेज होती हैं और इंसान कोमा में जा सकता है। अच्छा बेटा, आपने इसमें ये वेरी स्वेयर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स बता दिए कि किडनीज आ जाते, कोमा हो जाते, कन्वर्जन हो जाते। स्वेयर डिहाइड्रेशन में बेसिकली लो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स। क्या होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में? अगर बच्चों में कोई डिहाइड्रेशन है तो वो यकीनन क्या है कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैरी कर देता है। और बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन क्या होता है कि बच्चों की जान भी ले लेता है। तो इसलिए जो इन्फेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि अगर बच्चों को थोड़ा सा भी डायरिया, लूज मोशन आ रहे हैं या वॉमिट्स हो रही हैं तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ता है। एंड देन अगर एजिंग इफेक्ट्स की बात की जाए तो बड़े लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे क्या है कि उनको सफ़र करना पड़ता है डिहाइड्रेशन के, उनका वाटर लॉस होने लग जाता है ड्यू टू द वीकनेस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के वीक होने की वजह से। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब पानी पिए। अगर तो आइसोटोनिक है तो पानी का इस्तेमाल करें और सॉल्ट का भी, ORS इस्तेमाल करें। अगर तो हाइपरटोनिक है तो उसमें क्या है कि पानी को ज़्यादा यूटिलाइज करें, और अगर हाइपोटोनिक है तो उसमें क्या है कि सॉल्ट को ज़्यादा यूटिलाइज करें। तो सिंपल ट्रीटमेंट यही है डिहाइड्रेशन का कि आप पानी का यूटिलाइज करें। अगर पानी पीने से या ORS लेने से घर में भी आप ठीक नहीं हो रहे, वॉमिटिंग्स और डायरिया है, इट मीन्स कि आपको IV इन्फ्यूजन लगेगी। तो उसमें ये है कि आप जल्द से जल्द नियर बाय क्लिनिक की तरफ मूव करें जहाँ पे आपको IVs के थ्रू आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल किया जाए। फिर आपके पास एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड ओवर हाइड्रेशन। ऐसा नहीं है कि पानी बॉडी में कम होने से ही प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज़ औक़ात अगर ये पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं।
क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा अगर पानी है तो इसका मतलब है कि टॉक्सिक सब्सटेंस भी आपकी बॉडी में मौजूद है, बिकॉज वाटर इज द सोर्स जो कि आपकी बॉडी से ये टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो अगर पानी आपकी बॉडी में रिटेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, और वाटर की टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि यूरिया, क्रेटिनिन, ये जितने भी वेस्ट सब्सटेंस है ये बॉडी से नहीं निकल रहा। तो इनको निकलना भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये नहीं निकलेंगे तो फर्दर वाटर पॉइजनिंग हो जाएगी। अब कुछ साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से पता चलता है कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गई है आपकी बॉडी के अंदर। वो साइन एंड सिम्टम्स आपके क्या है कि लेट्स सपोज अगर किसी को भी फौरन से ऐसे लगता है कि उसका वेट कम होने लग गया, ठीक है, वीकनेस होने लग गई है, नज़र खराब होने लग गई है, प्रॉपर क्या है कि चक्कर आने लग जाते हैं, पेशेंट ऐसे लगता है जैसे सोया सोया है, ठीक है, अटेंटिव नहीं हो पाता, वॉमिटिंग है, नोजिया है, इसके बाद ब्लड की कमी होने लग जाती है, एसिडोसिस, क्योंकि वाटर ने क्या मेंटेन करना है, पीएच लेवल। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर है तो ये सब्सटेंस भी तो पीएच को ऑल्टर करेंगे ना। तो सबसे क्लियर जो प्रॉब्लम आता है वो एसिडोसिस का आने लग जाती है, फिर किडनीज की वीकनेस आने लग जाती है, डिलीरियम होने लग जाता है। डिलीरियम आपके पास मेंटल कंडीशंस की ऑल्टरेशन होती है, लाइक पेशेंट को नहीं समझ आता कि वो इस वक्त प्रेजेंट स्टेट में है या फिर वो ख्वाब की कंडीशन में है। और इसी तरह सीजर्स हैं, जिस तरह के सडन अनकंट्रोल इनवॉलेंट्री मस्कुलर सीजर्स, ये सब प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आ रहे होते हैं, स्पेसिफिकली वाटर इंटॉक्सिकेशंस की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, ठीक है, अब देखो साइन एंड सिम्टम्स तो हो गए, अब इसका ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम हो गया है तो अब इसके ट्रीटमेंट में यही है कि इसकी मेडिकेशन की जाती है, ठीक है, डायूरेटिक्स किए जाते हैं ताकि वाटर बॉडी से जल्द अज जल्द निकले, एडीएच हार्मोन थेरेपी करवाई दी जाती है, ठीक है, फिर बाज़ इंट्रावेनस भी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि क्या है कि बॉडी से ये जो वाटर इंटॉक्सिकेशन है इसको कवर किया जाए। So this is all about your chapter of blood and body fluid. So I will like समरा किरण। समरा किरण आप यहाँ पे हैं? यस मैम। समरा किरण आप बेटा मुझे बता सकती हैं कि व्हाट इज वाटर टॉक्सिकेशन? सिंपल आप बेशक मुझे उर्दू में बता दें जितना आपको समझ आया वाटर टॉक्सिसिटी डिहाइड्रेशन के बाद। मैम वाटर टॉक्सिफिकेशन में वो कहता है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है या आपको लूज मोशन लग गए तो उसके लिए आपने बताया कि वो इंजेक्शंस वगैरह लगवाने पड़ते हैं, इस तरह करके इंट्रा के बारे में आपने कुछ बताया था, तो वो लगवाते हैं, उससे जो वाटर की इंटॉक्सिफिकेशन होती है बॉडी में वो डायूरेटिक्स रिमूव हो लेने जाती है। पड़ते हाँ जी, वो रिमूव हो जाते हैं तो फिर जो बॉडी का बैलेंस है वो हैं। मेंटेन हो जाता है। Central Paul, Central, good. Central, are you here? आप मुझे सुन पा रही हैं Central? Central, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैम मैं सुन सकती हूँ। Central, आप मुझे बता सकती हैं कि वाटर टॉक्सिकेशन की वजह से पीएच लेवल जो डिस्टर्ब होता है तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस आती हैं? मैम जब पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है मतलब कि डिक्रीज होता है तो तब एसिडोसिस हो जाता है, उसकी वजह से मैम वो फटीग होती है। अच्छा, फातिमा शाहिद, फातिमा शाहिद आपने क्या अभी हमें ज्वाइन किया है? फातिमा शाहिद इज हियर।
यस मैम। मैम उसका मुझे मैसेज आया था, वो कह रही थी कि मेरा इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, तो आज क्लास में थोड़ी मुझे इशू हुई है। Then why she joined the class in the end? मैम मैंने If फिर से she have ज्वाइन किया, मैंने internet रीजॉइन issue, किया। बेटा आप मुझे अभी अपीयर हुई हैं. Okay, I will check your मैं क्लास ले joining रही हूँ। connection between class. आप कब से मेरी ले रही हैं क्लास? कितने मिनट्स हुए हैं अभी मैं आपको स्टार्ट से ले रही हूँ ज्वाइन क्लास, किए हुए? जब आपने लिंक भेजा था तब से। स्टार्ट से ले रही हैं? ठीक है बेटा. Okay class, I have uploaded a quiz. आप सबको शो हो चुका है, इसको ओपन करें एंड यू विल ओनली हैव 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपने वापस आना है, ठीक है? और ओके मैम। मैं रिस्पॉन्स जैसे ही बंद करूंगी, मैं दोबारा इसको नहीं ओपन करूंगी. जो जल्दी से अपनी गूगल क्लासरूम्स खोलें और इसको अटेंड करें. मैं आपको टोटल 7 मिनट्स दूंगी. 2 मिनट्स फॉर लोडिंग ऑफ दिस क्विज एंड देन 5 मिनट्स आपका रिस्पॉन्स सबमिट होने में. मैम ओपन नहीं हो रहा। आप वेट करें, आपको देखिए इंटरनेट कनेक्शन है, वरना थोड़ी देर के लिए यहाँ से साइन आउट हो जाएं एंड नो मैम, नहीं देन हो रहा। वो लोग कह रहे हैं कि आप अभी आया ही नहीं है। उन्होंने कहा नो लॉन्गर, मतलब अभी नहीं है, मैम रिस्पॉन्स लो क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज यस। वेट. लेट मी चेक. अभी भी नहीं आया? नो मैम। मैम आ प्लीज गया है, वेट. बट इट इज शोइंग दैट कि आपने इसको बंद कर दिया है। नो रिस्पॉन्स विल बी, लाइक अभी ऐसे ही आ रहा है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है। Okay, please let me check the responses. Oh, sorry. Actually, I did not allow. Now I am accepting the responses. Now please check, is it opening to all of you? अब देखें, अब ये सबको विजिबल होगा. यस मैम, हो गया। हो गया? Okay. Now please attempt it in 5 minutes.
Have you done it? Abir, are you done with it? Yes, ma'am. Okay, I received 7 responses. In 2 minutes, I'm going to off the responses. So please, all of you, submit me your responses now. May we start doing the Yes, ma'am. okay. मैम Yes. वो मैंने सबमिट कर दिया था लेकिन ऊपर मैंने ना वो स्वाइप किया तो वो फिर वो कह रहा है मिसिंग, तो अब मैं क्या करूं? वो मिसिंग का ऑप्शन आपने दे रहा है। जी आपने एक दफा सबमिट कर दिया है? Have जी you जी submitted it once? If यस you have submitted it once, it means कि वो मेरे पास आ गया है. अब आप उसको फर्दर सबमिट नहीं कर सकती. मैम वो अभी मुझे वो मिसिंग का ऑप्शन दे रहा है नीचे। इसका मतलब है कि आपने कुछ मिस कर दिया है. मिस तो आपने नहीं था कोई किया। एमसीक्यू मैम मिस मेरा कर मिसिंग आ रहा है। मैम मेरा भी मिसिंग आ रहा है। मैम मेरा भी मिसिंग आ रहा है। एक मरतबा वो सबमिट हुआ है उसके बाद वो स्वाइप करने से शायद मिसिंग कह रहा है। करके स्वाइप किया था मैंने। नहीं मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा वैसे ही मिसिंग आ रहा क्या आप में से किसी का भी सबमिट नहीं हुआ? मेरे पास तो आ गए हैं है। 18 सबमिट हो गया है रिस्पॉन्सेज. मैम, सबमिट हो गया है, मैम सबमिट लेकिन हो हमें गया। यहाँ पे मिसिंग शो हो रहा है। लेट मी चेक. नहीं, यहाँ पे तो बेटा सब कुछ ठीक है. मेरी तरफ से आपको अलाउ है. जिनका मिसिंग है आई थिंक उन्होंने एक दफा जरूर सबमिट करवा दिया है. Okay, now let let perform this quiz with me. I'm going to show you my tab. Is this tab is visible to all of you? No, ma'am. This tab is not visible to you. How is it possible? मैम शो नहीं हो रहा। Okay, please wait. Now please check. Yes, ma'am. यस मैम। Now is it visible to all of you? Yes. Okay. यस So मैम। I'm going to solve it for you. Mohsen, are you here? Okay, Manahil.
बख्तावर, Yes, ma'am. Ma'am. okay. Beta, please tell me the answer of this question. The acid production is balanced by the Ma'am. production of bases, so the acid base status of the body is maintained. Yes, ma'am. The substance that liberates hydrogen ion first. First one. Okay, Samra, Yes, ma'am. please tell me the answer of this question. इसका जल्दी से बताएं क्या है? The Ma'am, normal A. H plus concentration in A okay, A. 38 to 42. A को मैंने लॉक कर जी. Okay. Centog, Yes, ma'am. Centog, please tell me the answer of this question. Renal mechanism excrete H A, plus B, and C, D. conserve the basis. Third wala. Third wala. Renal mechanism excrete H plus and conserve the bases. आप में से कोई वॉलंटियर इसको करना चाहे? Yes, ma'am. Yes, your name, please. Bختاवर, ma'am. Okay, Ma'am, बख्तावर third बताइए option. इसका आंसर. Yes, 7.38 and 7.42. Okay, and the answer of the fifth one? Ma'am, Last fourth wala. Which option. one? मैम डी, मैम कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, I'm submitting the response. Let me check the answer. Is this quiz is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, so you got actually 10 out of 10 points. The answer number 1 is correct, 2 is correct, 3 is correct, 4th is correct, and 5th is correct. Very good. It means the Thank you, ma'am. concepts are Thank you, clear ma'am. to all of you. Okay, you're welcome. So, so this is all about today's quiz of acid base. I'm now going to recall the name of the students for attendance. If any one of you is missing, then please tell me the name in the end. Amna Abir Naeem? Present. Amna Present, ma'am. Jahangir? Okay. Amna Jahangir is signing with 2. Beta, why are you signing with 2 IDs? You are signing in with 2 IDs. Anfal Mirab? Anfal Mirab is not responding. Aqsa Liaquat? Present, ma'am. Arish Naeem? Present, ma'am. Aziza Wasim? Present, ma'am. Bakhtawar Shahid? Present, ma'am. Iman Hafizul Rahman? Present, ma'am. Iman Mehtab? Fatima Shahid? Present, ma'am. Hafiz Muhammad Osama? Present, ma'am. Hafza Salim? Present, ma'am. Kenza Saghir? Present, ma'am. Kenza Ramzan? Present, ma'am. Laiba Riaz? Present, ma'am. Okay. Laiba Riaz के बाद मरियम खान? Present, ma'am. Mohsin Tariq?
Nawal Tahir, Present, ma'am. Akiza Waris, Present, ma'am. Rida Babar, Present, ma'am. Samra, Present, ma'am. Samra Kiran. Samra Zulfikar, Present, ma'am. Santog Paul, Present, ma'am. Present, ma'am. Shafaq Aftab, and in the end, Tuba Naeem. Present, ma'am. Okay. So this is all about our today's interactive class and today's quiz. Inshallah, we will meet in the next week. I'm going to upload the lectures for the next week. So please watch my lectures and so that we will have a fruitful interaction in the next week. So Allah Hafiz for today. Ma'am. 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 सिग्नल क्यों नहीं आ रहे मैम ने अटेंडेंस लगा ली है? यस मैम। ओह